नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो लेसन में। टुडे इन दिस वीडियो लेसन वी शैल डिस्कस chapter number 6 of class 9th mathematics. The chapter is lines and angles. This is second part of the video lesson of this chapter. In our previous part we have discussed various things about basic concepts like line segment, point, angles, complementary angles, supplementary angles, linear pair of angles, adjacent angles. We have also proved theorem 6.1 and we have solved few questions of exercise 6.1 based on that theorem. Today we shall discuss new thing about this chapter, that is called parallel lines and transversal line. Myself Janardhan Dhyani, I welcome you all once again. So first of all, what are we going to learn today? हम आज क्या सीखने वाले हैं? We shall recall the concept of parallel lines and transversal lines. This concept is not new for us. In class 8 or 7th we have learned many examples of parallel lines and transversal lines. We shall learn about new terms like exterior angles, interior angles, corresponding angles, alternate interior angles, alternate exterior angles, consecutive interior angles or co-interior angles. These terms will be learned by us in this video lesson. These terms are very important to us. We shall learn axioms and prove theorem related to parallel lines and transversal lines. We may have few theorems based on these topics. We shall prove them. Okay, now let's proceed. What is parallel line and what is transversal lines? First of all, look at this picture. In this picture we have three lines. One is line L, ये line L है, this is line M and this is line N. हमारे पास तीन लाइन दी है, ठीक है। तो हमको तीन लाइन दी हैं। ये तीन लाइन अगर हम देखें ध्यान से, you have studied that a line which intersect two or more lines on distinct point is called transversal line. यहाँ पर दो लाइन्स को एक लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, लाइन M और लाइन N. ये दो लाइन हैं जो आपस में अभी इस फिगर के अंदर तो इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, ठीक है, लेकिन लाइन L जो है वो इन दोनों को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है. लाइन L is intersecting this line M on point P, this point, and line L is intersecting the line N on point Q. So line L is intersecting two lines on distinct point. This line L is called transversal line. कैसे लाइन कहेंगे इसको हम लोग? Transversal line. In the figure, line L is intersecting line M and N at point P and Q respectively. Therefore, line L is called a transversal line. You can see that there are various angles formed by these lines. कुछ angles बन गए, हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था. जब भी लाइंस, रेज, लाइन सेगमेंट्स आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे? एंगल बनाएंगे. एट पॉइंट P और वर्टेक्स P वी हैव फोर एंगल्स, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4. ऑन पॉइंट Q और वर्टेक्स Q वी हैव एंगल 5, 6, 7, 8. सो इन टोटल वी हैव 8 एंगल्स. एंगल 1, 2, एंगल 3, 4, 5, एंगल 6, एंगल 7 and angle 8. So in this picture we have learned what is transversal line. A transversal line is a line which intersect two or more lines on distinct or different points. हाँ, let us classify these angles. अब इनको हम classify करते हैं. Once again look at the figures. We have angle 1, angle 2, angle 3, angle 4. So 1, 2, 7 and 8. Angle 1, angle 2, angle 7 and angle 8. Look at these angles. Angle 1, angle 2, angle 7 and angle 8 are called exterior angles. Why these are called exterior? Exterior माने बाहरी, जो बाहर की तरफ हैं. ये दोनों एंगल हैं, ये जो चारों एंगल हैं, एंगल 1, 2, 8 और 7, ये इन दो लाइन M और N से बाहर की तरफ बन रहे हैं, बाहर की तरफ बन रहे हैं. दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल्स. और जो एंगल अंदर की तरफ बन रहे हैं, यानी इन दो लाइन्स के बीच दिख रहे हैं हमको, ये वाली फॉर्मेशन दिख रही है, ये वाली और ये वाली, इन्हें कहेंगे इंटीरियर एंगल्स. क्या कहेंगे इनको हम लोग? इंटीरियर एंगल्स. तो 1, 2, 7 and 8 आर एक्सटीरियर एंगल्स एंड रेस्ट ऑफ द आर एंगल्स आर इंटीरियर एंगल्स. एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 and 6. नाउ व्हाट इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल? अब इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे एंगल 1 और एंगल 5 और 2 and 6. Look at the figure carefully. Angle 2 and angle 6 are corresponding angle. Angle 4 and angle 8 are corresponding angle. Angle 3 and angle 7 are corresponding angles. Why? Because 1 और 5, देखिए 1 और 5 एंगल कैसा है? अगर हम एंगल 1 की बात करें
इस एंगल 1 की बात करें, ये एंगल L और ये लाइन L और लाइन इस PM से बन रहा है, ठीक है। ऐसे एंगल जो 5 है ये बन रहा है लाइन L, ये यानी लाइन PQ भी कह सकते हैं, लाइन L भी कह सकते हैं, और इससे बन रहा है, एक ही तरफ है और बाहर की तरफ है। इस लाइन के दोनों एंगल लेफ्ट साइड में है और ऊपर यानी एक्सटीरियर ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ माने लाइन से ऊपर की तरफ है, तो कॉरस्पॉन्डिंग है। सिमिलरली ये 2 और ये 6 ये L लाइन के राइट साइड में है और लाइन M और लाइन के ऊपर हैं, तो ये आपस में कॉरस्पॉन्डिंग हो गए। दिस एंगल दिस एंगल 4, ये एंगल 4 और ये एंगल 8 ये लाइन L के लेफ्ट साइड में है और लाइन M के नीचे 4 है और लाइन N के नीचे 8 है, तो कॉरस्पॉन्डिंग हो गए। ऐसे ही एंगल 3 और एंगल 7 ये लाइन L के राइट साइड में है दोनों एंगल, ये एंगल और ये एंगल लाइन L के राइट साइड में है और लाइन M और लाइन N के नीचे है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। वंस अगेन अनदर टाइप ऑफ एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से हमने देखा भी, ऊपर देखिए 3, 4, 5, 6 ये इंटीरियर एंगल्स हैं। इनमें से कौन से एंगल्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे, तो एंगल 4 और एंगल 6 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। ये वाली शेप दिखेंगे, एंगल 4 और एंगल 6 कुछ जेड शेप जैसा बनता है, जिग जैग फॉर्मेशन बनती है। अल्टरनेट एंगल्स की जो फॉर्मेशन बनती है वो जिग जैग टाइप बनती है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल्स इन्हें कहेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सिमिलरली एंगल 3 और एंगल 5 यानी इस तरह से, ये एंगल 3 हो गया, ये एंगल 5 हो गया, ये बने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसका अपोजिट होगा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स 1 और 7। कौन से एंगल 1 और 7, ये एंगल ये 1 और ये 7, ये हो गए अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। 2 और 8 ये और ये क्या हो गए अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन, वो एंगल जो एक ही साइड हो ट्रांसवर्सल लाइन के। ये हमारी 2 लाइन्स हो गई, ये लाइन होगी ट्रांसवर्सल लाइन। तो एंगल 4 एंड 5, ये एंगल 4 है, फिगर को देखिए, और ये एंगल 5 है, ये एक ही साइड है ट्रांसवर्सल लाइन के और अंदर की तरफ है, तो ये कहलाएंगे इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन। सिमिलरली एंगल 3 और एंगल 6, ये वाला 3 और ये वाला 6, ये दोनों एंगल भी कैसे होंगे इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। सो इस फिगर को समझना बहुत ज़रूरी है। इस फिगर को आप बुक में देखिए, इन एंगल्स को देखिए, फिगर में कौन सा एंगल कहाँ आता है समझने की कोशिश कीजिए। नाउ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड कौन से कहा अभी बताया मैंने, एंगल 4 एंड एंगल 5, एंगल 3 और एंगल 6, इन्हें कहेंगे इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन और ऑल्सो कॉल्ड को इंटीरियर एंगल्स। कैसे एंगल होते हैं ये, को इंटीरियर एंगल्स। Another case. Now let us find out the relation between the angles in these pairs when the line M and line L are parallel. अभी हमारे पास जो पिछला फिगर था उसमें लाइन M और लाइन L पैरेलल नहीं थी। पैरेलल क्यों नहीं थी, कि अगर इस लाइन M को इधर बढ़ाएंगे और इस लाइन N को इधर बढ़ाएंगे, दोनों आपस में क्या कर जाएंगे, इंटरसेक्ट कर जाएंगे। बट अगर ये लाइन M और लाइन L दोनों क्या हो जाएं, पैरेलल हो जाएं, तो क्या होगा, जो फिगर आई इस तरह से आएगी। अब देखिए यहाँ पर अगेन लाइन L क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, बिकॉज दिस लाइन L इज इंटरसेक्टिंग द लाइन M एंड द लाइन N ऑन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, दिस एंड दिस। लेकिन इसमें डिफरेंट क्या है कि M और N उस केस में, इससे पिछले केस में पैरेलल नहीं थे, अभी M और N क्या हो गए, आपस में पैरेलल हो गए। अब यहाँ क्या होगा, अगर आप इस तरह की फिगर बनाइए और आपको बनानी है फिगर और आप इन एंगल को मेज़र करेंगे, तो आप क्या पाएंगे कि एंगल 1, एंगल 5 कुछ इस तरह का रिजल्ट आप पाएंगे कि एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल है, एंगल 2 और एंगल 6 इक्वल है, एंगल 4 और एंगल 8 इक्वल है, एंगल 3 और एंगल 7 इक्वल होंगे। आप ये पाएंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल। आप ये करके देखिएगा, आपको मिलेगा ये रिजल्ट। नाउ एक्सियम 6.3 ऑफ दिस चैप्टर, if a transversal intersect 2 parallel lines, then each pair of corresponding angle is equal. Does this statement hold true? It can be verified as follows. Draw a line AD and mark point BC on it
एट बी एंड सी कंस्ट्रक्ट एंगल ए बी क्यू एंड बी सी क्यू इक्वल टू इच अदर एज शोन इज फिगर 1। अभी एग्जाम क्या कह रहा है, एग्जाम कह रहा है कि एक ट्रांसवर्सल लाइन एक ट्रांसवर्सल लाइन अगर दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है तो ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इससे पिछले फिगर को देखते हैं। इसमें एक ट्रांसवर्सल लाइन L है जो कि दो पैरेलल लाइन M और N को इन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो एंगल 1 और एंगल 5 क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। हमने इससे पहले भी देखा ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। अभी इसको मेजर करके निकाला हमने, लेकिन यहाँ समझते हैं कैसे निकाल सकते हैं। उसके लिए हम एक फिगर बनाते हैं। क्या करते हैं, हम एक लाइन खींचते हैं AD और इस पर कोई दो पॉइंट ले लेते हैं B और C। ये हमने दो पॉइंट ले लिए B और C। अब इन दो पॉइंट से हमने दो लाइंस खींची इस तरह से BQ और BS। किस तरह खींची कि BQ और BS आपस में कैसी हों, पैरेलल हों। ठीक है, तो हमें क्या मिल गई, एक पैरेलल लाइन मिल गई, दो पैरेलल लाइन मिल गई और एक मिल गई ट्रांसवर्सल लाइन। अब एंगल ABQ और BCQ कैसे हों, आपस में इक्वल हों। कैसे हों, इक्वल हों। तो क्या होगा, प्रोड्यूस QB एंड SC ऑन अदर साइड ऑफ AD टू फॉर्म टू लाइंस PQ एंड RS इन फिगर 2। वही हमने किया कि इस BQ को इधर एक्सटेंड किया और इस SC को भी इधर एक्सटेंड किया, तो हमें वही फिगर मिल गई जहाँ पर AD क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। अब क्या होगा इसमें, यू मे ऑल्सो ड्रॉ कॉमन परपेंडिकुलर टू द टू लाइन्स PQ एंड RS एट डिफरेंट पॉइंट्स एंड मेजर देयर लेंथ्स। You will find it the same everywhere. You may conclude that lines are parallel. Lines कैसे हो जाएंगी, ये पैरेलल हो जाएंगी। अगर हम इन दो के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे कहीं पर भी तो क्या निकलेगा, वो पैरेलल ही निकलेंगे। डिस्टेंस क्या निकलेगी, सेम निकलेगी। इसका मतलब क्या है कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो ये दो लाइन्स आपस में कैसी हैं, पैरेलल्स होंगी। इसका अपोजिट कहना हो कि अगर ये पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्सल इन्हें काट रही है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। दिस इज एक्सियम 6.1। एक्सियम 6.4, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स सच दैट अ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल देन द टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ये दोनों एक्सियम आपस में एक दूसरे के उल्टे हैं। आसान भाषा में समझना हो कि अगर हमने दो पैरेलल लाइन खींची हैं इस तरह से और एक ट्रांसवर्सल उन्हें काट रही है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसी को उल्टा करके बोलना हो कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं तो लाइंस क्या होंगे, आपस में पैरेलल हो जाएंगी। सो नाउ लेट अस प्रूव थ्योरम 6.2। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मैंने कहा था जो Z शेप बनाते हो इस तरह से, इस तरह के एंगल, जैसे यहाँ पर ये Z शेप बन रहा है, कुछ इस तरह का जिग-जैग शेप जैसे कह सकते हैं, ये एंगल और ये एंगल। इसी को उल्टा किया तो ये और ये एंगल। ठीक है, ठीक है। तो ये एंगल्स कैसे होंगे, आपस में इक्वल होंगे। मैं दिया क्या है, दिया ये है कि AB और CD कैसे हैं, पैरेलल है और PS क्या है, उनका ट्रांसवर्सल लाइन है। सो वी हैव टू प्रूव दैट एंगल BQR is equal to QRC and angle AQR is equal to QRD. Now from figure, transversal PS intersect parallel line AB and CD at point Q and R respectively. Q और R पे क्या किया उसने, इंटरसेक्ट किया। Is BQR is equal to QRC? BQR is equal to QRC कैसे देखते हैं, you know that PQA is equal to QRC। फिगर देखिए, but where is PQA? This is PQA and this is QRC. So PQA and QRC कैसे इक्वल हैं, एक्सियम जो अभी हमने देखा था, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है और ये PS क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम से ये पता लगा PQA और QRC इक्वल है। अगेन PQA इज इक्वल टू BQR, क्यों, ध्यान से देखिए, लाइंस जब एक दूसरे को इस तरह काटती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो लेसन में देखा था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, आपस में इक्वल। सो ये क्या हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए, अपोजिट एंगल्स। PQA इज इक्वल टू BQR, PQA इज इक्वल टू BQR। अब यहाँ देखिए और यहाँ देखिए, PQA इज इक्वल टू एंगल QRC एंड PQA इज इक्वल टू BQR। वाई, दीज एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एक दूसरे के सामने हैं दोनों एंगल्स। तो यहाँ से PQA इज इक्वल टू BQR एंड PQA इज इक्वल टू QRC, इन दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हैं तो QRC इज इक्वल टू BQR। ये आ गया हमारा पहला रिजल्ट जो हमें चाहिए था कि दिस BQR ये और QRC आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए।
ठीक है, आसान भाषा में देखना हो तो इसको समझिए कुछ इस तरह से, ये एक लाइन है और एक दूसरी लाइन है, दोनों पैरेलल हैं, हमें प्रूफ करना था ये एंगल इसके इक्वल है. नाउ दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इज ऑल्सो इक्वल टू दिस एंगल. वाई? This angle equals to this angle corresponding angle and this angle is equal to this angle vertically opposite angle. ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो ये दोनों भी आपस में कैसे हो गए? बराबर. So this is theorem 6.2. Again theorem 6.3. If a transversal intersect two lines such that a pair of alternate angles, interior angles equal, then the two lines are parallel. ये 6.3 6.4 का जस्ट उल्टा है. वहाँ पर हमको लाइन पैरेलल दी थी, हमें एंगल इक्वल करने थे. कौन से एंगल इक्वल करने थे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल करने थे. यहाँ पर हमको लाइंस पैरेलल प्रूफ करनी है और हमें दिया क्या है? हमें दिया ये है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर है. हमें दिया ये है कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो बिल्कुल उल्टा करेंगे. अब यहाँ देखिए बी क्यू आर इज इक्वल टू क्यू आर सी दिया है. इट इज़ गिवन टू अस बी क्यू आर इज इक्वल टू क्यू आर सी. बट वट डू वी नो? वी नो दैट बी क्यू आर इज इक्वल टू पी क्यू ए. दिस एंगल, क्यों? सेम लॉजिक, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. पी क्यू आर और पी क्यू ए क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं. अब इसको देख लीजिए और इसको देख लीजिए. पी क्यू आर इज इक्वल टू क्यू आर सी एंगल, एंगल बी क्यू आर इज इक्वल टू पी क्यू ए. बोथ द लेफ्ट हैंड साइड्स इन दीज इक्वेशंस आर इक्वल, सो राइट हैंड साइड विल ऑल्सो बी इक्वल. सो क्यू आर सी इज इक्वल टू पी क्यू ए और बी क्यू आर इज इक्वल टू क्यू आर सी. ठीक है, तो क्या मिल जाएगा हमको? पी क्यू ए इज इक्वल टू क्यू आर सी, क्योंकि ये और ये इक्वल हैं, तो ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल रहेंगे. बट दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. फ्रॉम द फिगर विच टाइप ऑफ एंगल आर दीज एंगल? पी क्यू ए इज कॉरस्पॉन्डिंग टू क्यू आर सी. कॉरस्पॉन्डिंग क्यों है? क्योंकि दोनों लाइन के ऊपर हैं और ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में है, तो एक ऐसे एंगल हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए. तो अभी हमने जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एग्जाम पढ़ा था उसमें क्या था कि अगर दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं तो लाइंस क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी. दैट मीन्स ए बी इज पैरेलल टू सी डी. तो ये दो थ्योरम्स कहती हैं कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं तो लाइंस क्या होंगी? पैरेलल होंगी. अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं तो लाइंस क्या होंगी? पैरेलल होंगी. अगर लाइंस पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल उन्हें इंटरसेक्ट कर रही है दो पॉइंट पर, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स सब क्या होंगे? इक्वल होंगे. और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स तो इक्वल होते ही हैं, ये हमने पहले पार्ट में सीखा था. सो इन द केस ऑफ पैरेलल लाइंस एंड एट लाइन which is transversal to them, all the alternative interior angles are equal to each other. All now theorem 6.4, it says if a transversal intersects two parallel lines, then each pair of interior angles on the same side of transversal is supplementary. अब इस फिगर को देखिए, each pair of interior angles on the same side. कौन से एंगल की बात कर रहा है? ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स. तो कौन से एंगल इंटीरियर एंगल्स हैं? देखिए ये एंगल ए क्यू आर और एंगल क्यू आर सी, ये इंटीरियर एंगल्स हैं ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन. दोनों एक ही साइड हैं. सिमिलरली दिस एंगल बी क्यू आर और एंगल क्यू आर डी, ये कैसे हैं? इंटीरियर एंगल्स हैं अंदर की साइड. ठीक है, एक ही साइड. ठीक, तो इन्हें हम को इंटीरियर एंगल्स भी कहते हैं. थ्योरम कहती है कि इन दोनों का जो सम है वो कितना होता है? सप्लीमेंट्री एंगल्स के सम के इक्वल होता है. दैट मीन्स इक्वल्स टू 180 इन द केस ऑफ पैरेलल लाइंस ओनली. लाइंस कैसी हों? जब पैरेलल्स हों. तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180. सिमिलरली दिस प्लस दिस इक्वल टू 180. इफ लाइंस आर नॉट पैरेलल देन दिस इज नॉट ट्रू. तब ये 180 होगा, ज़रूरी नहीं है. अगेन सीखा उल्टा है 6.5. If a transversal intersect two lines such that a pair of interior angles or co-interior angles, इनको हम co-interior angles भी कहते हैं, on the same side of a transversal is supplementary, then the two lines are parallel. 6.4 का just उल्टा है 6.5. वो कहती है कि अगर दो parallel lines हैं, नहीं, if a transversal line is intersecting two lines such that sum of two co-interior angle is 180, then the line will be parallel. तो लाइन क्या होंगी? पैरेलल होंगी. तो इस एंगल को कहते हैं को इंटीरियर एंगल्स, और इन दोनों का सम कितना होता है? 180 ही होता है. लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन. अब थ्योरम 6.6 पे आते हैं. इट सेज लाइन विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर. कोई दो लाइन किसी एक लाइन के पैरेलल हैं
तो वो लाइन आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। लुक एट दिस फिगर, यहाँ पर 3 लाइनें दी हैं, लाइन L, लाइन M, लाइन N, और एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो तीनों को पॉइंट अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। और क्या दिया है, लेट अस ड्रॉ लाइन T ट्रांसवर्सल फॉर लाइन L, M एंड N। इट इज गिवन दैट M इज पैरेलल टू लाइन L। M और L ये आपस में पैरेलल है, और N और L भी आपस में क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो क्या देगा, इससे क्या पता लगे, इससे ये पता लगेगा कि M और N भी आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है ना, हमें क्या पता है, M और L पैरेलल है और N और L पैरेलल है। हमें क्या नहीं पता है, हमें M और N के बीच का रिलेशन नहीं पता है, तो क्या होगा, ये भी पैरेलल होगा। लेट अस प्रूव दिस। देखिए, अगर L और M कैसे हैं, आपस में पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हैं, तो ये दोनों कैसे एंगल हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। सो 1 इज इक्वल टू 2। और अगर ये लाइन और ये लाइन, जैसा कि कहा गया है N और L भी पैरेलल हैं, तो अगर N और L पैरेलल है तो 1 और 3 भी इक्वल होगा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। नाउ 1 इज इक्वल टू 2 एंड 1 इज इक्वल टू 3, व्हाट डज इट गिव, इट गिव्स 2 इज इक्वल टू 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, है ना, ये हमने पढ़ा है एक्सियम्स। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि इनके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हैं तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। ठीक है, if two quantities are equal, if one quantity is equal to second quantity and the same one first quantity is equal to third quantity, then the second and the third quantity are also equal। ये हमने यूक्लिड ज्योमेट्री में पढ़ा था। तो 2 and 3 will be equal। ठीक है, एंड 2 और 3 कैसे एंगल हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, क्यों, क्योंकि ये दोनों के दोनों ट्रांसवर्सल के एक ही साइड हैं और लाइन के ऊपर बनते हैं। तो क्या उसका मतलब क्या पता लगा, इससे पता लगा कि M is parallel to line L। So we have proved the statement given the theorem that gives lines which are parallel to the same line। दो लाइन हैं जो कि एक ही लाइन के पैरेलल हैं, M भी पैरेलल है N के और N भी पैरेलल है L के। तो M is equal parallel to line L and N is parallel to line L, that gives M is also parallel to line N। Now we shall discuss few questions from exercise 6.2। This is first question. In this question we have given a figure like this, 6.28 figure. Find the values of x and y and then the prove or show that AB is parallel to CD। We have to prove that AB is parallel to CD। Now look at the figure carefully। We have to prove AB is parallel to CD। To prove AB is parallel to CD, we have to prove angle x is equal to angle y, because if alternate interior angles are equal, then the lines are parallel। अभी हमने थ्योरम डिस्कस की थोड़ी देर पहले। तो अगर x और y कैसे एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक, अगर हमने इन दोनों की वैल्यू इक्वल निकाल ली तो हम ये ऑटोमेटिकली प्रूव कर देंगे कि दोनों के दोनों एंगल्स कैसे हैं, ये दोनों लाइंस कैसे हैं, आपस में पैरेलल हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ y। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, लुक एट द फिगर। फ्रॉम द फिगर वी कैन से दैट x प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई, क्योंकि जो x और 50 दोनों के दोनों एंगल हैं, ये इस लाइन के ऊपर बन रहे हैं। लाइन, ये जो लाइन हमें दिख रही है ना, इस लाइन के ऊपर एंगल बन रहे हैं दोनों, इस लाइन के ऊपर। तो ये एंगल और ये एंगल कैसा एंगल है, एडजेसेंट एंगल है और लीनियर पेयर ऑफ एंगल भी हैं। ठीक है, तो x प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से क्या मिल गया, x इज इक्वल टू 180 माइनस 50, दैट इज 130 डिग्री। x की वैल्यू मिल गई। अगेन लुक एट द फिगर, y इज इक्वल टू 130 डिग्री, बिकॉज ये जो 130 डिग्री का एंगल है, ये वाला एंगल और ये जो y एंगल है, कैसे हैं आपस में, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इट मीन्स दे आर इक्वल। सो द वैल्यू ऑफ y इज ऑल्सो 130 डिग्री। अब फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशन देखिए, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 that says x is equal to 130, इक्वेशन नंबर 2 that says y is equal to 130। तो दोनों की दोनों इक्वेशन हमको 130 बता रहे हैं कि दोनों की वैल्यू कितनी है, 130। तो यहाँ से क्या पता लगा हमको कि x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 130, और ये दोनों एंगल इक्वल हैं। तो इस फिगर के हिसाब से दोनों एंगल कैसे एंगल हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो क्या लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल्स होती हैं। सिंस x एंड y आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सो and they are equal, so from theorem 6.3 we can say that AB is parallel to CD। so we have proved that AB is parallel to CD। AB और CD को पैरेलल प्रूफ करने के लिए
हमें इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल या फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को इक्वल प्रूव करना होता है। अगर इक्वल प्रूफ हो जाएं तो लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। नाउ दिस इज सेकंड क्वेश्चन, इसको देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन से इन फिगर 6.31, ये फिगर 6.31 जो ऊपर वाला फिगर है, ये वाला फिगर, इसको देखिए, इस वाले फिगर को देखिए, ठीक है। पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, यानी कि ये लाइन पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, ठीक है। एंड पी क्यू आर इज इक्वल टू 110 डिग्री एंड आर एस टी इज इक्वल टू 130 डिग्री। फाइंड क्यू आर एस, हमें ये एंगल की वैल्यू पता करनी है। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। ड्रॉइंग अ लाइन एल एम पैरेलल टू एस टी, क्या किया, एक लाइन एल एम ड्रॉ की जो आर से होके जाए फ्रॉम पॉइंट आर, जो कि एस टी और पी क्यू के पैरेलल हो जाएगी। एक्सटेंड पी क्यू टू वाई, इस पी क्यू को वाई तक एक्सटेंड किया, यहाँ से इस लाइन को बढ़ाया, कहाँ तक, वाई तक बढ़ाया, यहाँ से इस तरह से वाई तक बढ़ाया इसको। एंड ड्रॉ एल एम पैरेलल टू एस टी, और एक लाइन ड्रॉ की एल एम लाइन ड्रॉ की पैरेलल टू एस टी, ठीक है। नाउ टी एस क्यू एंगल टी एस एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स एक्स। देखिए कहाँ पर है टी एस एक्स, टी एस एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स एस, यानी कि ये एंगल, ये देख रहे हैं, ये है एक्स ना, तो ये एंगल, ये वाला एंगल। क्यों, क्योंकि अभी देखा हमने कि एस टी और पी क्यू पैरेलल है, तो एस टी और पी वाई भी क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, और दोनों लाइन पैरेलल है तो ये लाइन क्या होगी, ट्रांसवर्सल लाइन होगी। तो ये एंगल कैसे एंगल होंगे, अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे, तो ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। ये पता लगा, तो क्यू एक्स एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 130 डिग्री आ जाएगी, क्यू एक्स एक्स की वैल्यू 130। अब क्यू एक्स एक्स प्लस आर एक्स क्यू, क्यू एक्स एस प्लस आर एक्स क्यू, वेयर इज आर एक्स क्यू, ये रहे आर एक्स क्यू। ये दोनों एंगल कैसे एंगल हैं, लीनियर पेयर एंगल्स, ये वाले एंगल्स देखिए, ये है क्यू एक्स एस और ये है आर एक्स क्यू, क्यू एक्स एस और ये है आर एक्स क्यू। ये तो हमने निकाला अभी 130, कितना निकाला इसको हमने अभी 130, और ये कितना है, ये निकालना है। ये दोनों एंगल कैसे हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा हमें आर एक्स क्यू, दैट इज़ 50 डिग्री, आर एक्स क्यू 50 डिग्री मिल गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, पी क्यू आर इज इक्वल टू क्यू आर एम। नाउ लुक एट द फिगर, पी क्यू आर इज इक्वल टू क्यू आर एम, दिस, ये इक्वल हो गया। अल्टरनेट एंगल्स हैं, क्यों, पी क्यू और एल एम कैसी हैं, पैरेलल हैं, तो क्यू आर एम कितना हो जाएगा, 110 डिग्री, कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। नाउ आर एक्स क्यू इज इक्वल टू एक्स आर एम, लुक एट द फिगर, आर एक्स क्यू, वेयर इज आर एक्स क्यू, ये आर एक्स क्यू इज इक्वल टू एक्स आर एम, वेयर इज एक्स आर एम, ये एक्स आर एम, आर एक्स क्यू, आर एक्स क्यू, ये है आर, ये है एक्स, ये है क्यू, इज इक्वल टू एक्स आर एम। कैसे एंगल हैं, अल्टरनेट, क्यों, बिकॉज पी क्यू या पी क्यू एक्स इज पैरेलल टू एल आर एम, पी क्यू एक्स इज पैरेलल टू एल आर एम। तो यहाँ से किसकी वैल्यू मिलेगी हमको, एक्स आर एम की वैल्यू मिल जाएगी 50 डिग्री, एक्स आर एम की वैल्यू 50 डिग्री मिल गई। तो क्यू आर एस की वैल्यू कितनी निकलेगी, एक्स आर एम, एक्स आर एम मिला, और हमको क्या पता है, क्यू आर एम पता है, क्यू आर एम ये पता है, इस क्यू आर एम में से एक्स आर एम माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा क्यू आर एस। तो क्यू आर इज इक्वल टू क्यू आर एम माइनस एक्स आर एम, दैट इज इक्वल टू 110 माइनस 50, और क्यू आर एस इज इक्वल टू 60 डिग्री। दैट इज हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू आर एस। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ लेट्स प्रोसीड टू अनदर क्वेश्चन। दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज एंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट आपका लाइट जो आप साइंस में पढ़ते हैं उसका भी आप यूज़ करेंगे। देखते हैं कैसे। पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। देखिए ये दो मिरर्स हैं, पी क्यू और आर एस, ये दो मिरर्स हैं आपके सामने और ये पैरेलल हैं। अन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स द मिरर, ये एक इंसिडेंट रे है लाइट की जो कि इस मिरर पी क्यू को स्ट्राइक करती है बी पर।
रिफ्लेक्टेड रे मूव्स टूवर्ड्स अलोंग द पाथ BC, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये रे गई BC पे, और फिर C पॉइंट पे इसने क्या किया, स्ट्राइक किया, और फिर रिफ्लेक्ट हुई CD रे के फॉर्म में। यानी कि ये रे AB दैट इज इंसिडेंट रे, रे BC दैट इज रिफ्लेक्टेड रे, एंड दिस रे इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड रे CD। इस तरह से इसने पाथ अपना पूरा किया। प्रूव दैट AB इज पैरेलल टू CD, हमें प्रूव करना है कि ये रे AB और CD कैसी हैं, पैरेलल हैं। ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे, इसके लिए एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इसका नाम है BE। क्या नाम है इसका, BE एंड PQ। ड्रॉ BE परपेंडिकुलर टू PQ, ये है BE दैट इज परपेंडिकुलर टू PQ। ठीक है, एंड CF इज परपेंडिकुलर टू RS। ठीक है, ये हमने ड्रॉ किया। अब हमें पता होता है क्या, एंगल, यहाँ से हमें दो एंगल मिलेंगे, ये एंगल और ये एंगल। ठीक, तो क्यों एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल क्यों है, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल एंगल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस RS मिरर के लिए ये जो रे BC है वो क्या होगी, ये होगी इंसिडेंट रे, जो इस C पॉइंट से रिफ्लेक्ट होने के बाद बन जाएगी रिफ्लेक्टेड रे। तो ये जो एंगल है ये कहलाता है साइंस के अकॉर्डिंग, हम जो पढ़ा लाइट में, इसको कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दोनों इक्वल होते हैं। सिमिलरली एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल होंगे, ये एंगल 4 और एंगल 3 भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। नाउ एंगल 2 इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल 3। अब एंगल 2 और एंगल 3 आपस में इक्वल क्यों हैं, वो इसलिए इक्वल हैं कि ये PQ और RS मिरर पैरेलल थे, और इन पर जो परपेंडिकुलर हम खींचेंगे वो भी क्या होंगे, पैरेलल हो जाएंगे। और अगर ये पैरेलल होंगे तो ये जो एंगल बन रहा है, ये Z शेप में एंगल बन रहा है, और ये एंगल 3 और एंगल 2 क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सो इससे क्या पता लगा, 2 इज इक्वल टू 3। अब 1 इज इक्वल टू 2 एंड 3 इज इक्वल टू 4 एंड 2 इज इक्वल टू 3। इन तीनों इक्वेशन से क्या पता लगा कि 1 इज इक्वल टू 4। ये 1 और ये 4 क्या है, आपस में इक्वल है, और ये 1 और 4 आपस में इक्वल होंगे। इसका मतलब अगर इन दोनों में हम दो से मल्टीप्लाई कर दें, 2 इंटू एंगल 1 करें और 2 इंटू एंगल 4 करें, तो हमें क्या मिलेगा, 2 इंटू एंगल 1 मीन्स 1 प्लस 1 एंड 4 प्लस 4, दैट विल गिव 1 प्लस 2 एंड 3 प्लस 4, because 1 can be written as 2 because angle 1 is equal to angle 2 and angle 4 is equal to angle 3। यहाँ से तो 1 plus 2 it means angle ABC and 3 plus 4 is equal to 1 plus 2 is equal to angle BDC, angle 1 plus 2 is equal to angle BCD, it is BCD and this is angle ABC। अब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो कैसे एंगल हुए कि दोनों एक कोर्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, AB और CD आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल। जिस तरह देखिए इसको, ये ना एंगल ABC और DC, तो अगर BCD और ABC आपस में इक्वल हो गए, इसका मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो गए, इसका मतलब AB इज पैरेलल टू CD। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने प्रूव किया। हमने क्या किया, हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचा। लाइट के कॉन्सेप्ट में पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल। अगेन ये और ये एंगल आपस में इक्वल हैं, क्योंकि ये और ये पैरेलल हैं। तो ये और ये एंगल कैसे एंगल हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर है, यानी कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। फिर दोनों और 2 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 1 प्लस 1 4 प्लस 4, दिस 1 कैन बी रिटन एज 2, दिस 4 कैन बी रिटन एज 3, सो एंगल 1 प्लस 2 इट मीन्स एंगल BCD, this angle, and angle 3 plus 4 means ABC, so both the angles are same, and from the figure this is this is alternate interior angles, and from theorem we know that if alternate interior angles are equal then the lines are parallel।
So AB is parallel to CD. So that's it. This is the second part of the video lesson. I hope आपको ये समझ में आया होगा। इसको देखने के बाद आप एक्सरसाइज 6.2 के बाकी बचे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, एग्जांपल्स को सॉल्व कीजिए, और अगर आपको समझ में ना आया हो, तो क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो, तो कमेंट सेक्शन में हमसे आप सवाल पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द